थैंक यू लॉर्ड। हम तेरे नाम के लिए जीते हैं खुदा। तू बड़े और हम घटे खुदा। वी लव यू लॉर्ड। वी लिफ्ट यू हाई फादर। तू हमारा है और हम तेरे हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। तू जब से हमारी जिंदगी में आया सब कुछ बदल गया खुदा। तू बड़े और हम घटे खुदा। थैंक यू लॉर्ड। वी लिफ्ट यू फादर। तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम
Thank you for lavishing your mysteries on us. Thank you for giving us your knowledge and wisdom. धन्यवाद करते हैं खुदा. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. We love you, Lord. We adore you, Father. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। God is good. परमेश्वर अच्छा है। God is good. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, We love you. तुझसे प्रेम करते हैं खुदा, We know और हम जानते हैं all our strength is in you. हमारा सारा सामर्थ्य तू है खुदा, Our strength is in you. हमारा सामर्थ्य तुझ में है। Father God, हे पिता I परमेश्वर, thank for your precious people तेरे कीमती लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, and this day which you added in our lives. और ये दिन जो हमारे जीवन में तूने जोड़ा है, Help us हमें मदद कर that we may learn कि हम सीखें and live life pleasing to you. और जीवन जी सके जो तुझे प्रसन्नीय है। Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, Things which we don't know, चीज़ें जो हमें नहीं मालूम, things which we don't understand, जो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, we just wait on you हम तुझ पर रुके हैं खुदा, that in due time कि सही समय में you may reveal to us कि तू हमें हमारे सामने प्रकट करे। everything we want according to your will, Lord. सब कुछ हम चाहते हैं तेरी इच्छा के अनुसार We खुदा, don't want to rush. हम दौड़ना नहीं चाहते Without you, बिना तेरे, we want to do nothing. हम कुछ भी नहीं करना चाहते We हैं। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, Let everyone who is present here with hunger, हर एक जो यहाँ पे मौजूद है भूख से let them be filled, satisfied. वो भर जाए, तृप्त हो जाए। Thank you, Father. धन्यवाद करते In हैं Jesus' पिताजी, name. यीशु के नाम में। Amen. Greetings to you in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। And God is good. परमेश्वर अच्छा है, We are learning about trumpet 2 today. और आज हम दूसरी तुरई के बारे में सीख रहे हैं। And timing of trumpet 2 on 7 years timeline, we don't know. और 7 साल के समय रेखा में तुरई जो दूसरा नंबर तुरई है कहाँ पर है हमें नहीं मालूम। We don't know when the trumpet 2 will be blown in the 7 years tribulation timeline. 7 साल के समय रेखा में हमें ये नहीं पता कि दूसरी तुरई कब फूकी जाएगी। Maybe it will start immediately after trumpet 1. हो सकता है कि वो तुरई पहली के बाद तुरंत शुरू हो, 1 and seal 1 will be open at the beginning of the 7 years tribulation. पहला तुरई और पहली मोहर जो है वो 7 साल के शुरू होने के वो फूकी जाएगी, And that time white horse will run, और उस समय श्वेत घोड़ा दौड़ेगा, deception will run, deception will run in the land, भूमि पर फसावट होगी, and then it will continue till the end of the 7 years. और 7 साल के अंत तक वो जारी रहेगा। Trumpet 2, दूसरा तुरई, seal 2, दूसरी मोहर, red horse, लाल घोड़ा, wars and rumors of wars we will hear. युद्ध और युद्ध की अफवाहें हम सुनेंगे। The second angel sounds the second trumpet. दूसरा स्वर्गदूत जो है दूसरी तुरई को फूकेगा। Should we open Revelation 8th chapter and 8th and 9th verse? क्यों न हम प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ें। And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। 9th verse, and the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए।
exact timing of second trumpet is unknown to us. दूसरे तुरई का सही समय जो है वो हमें मालूम नहीं। These events under second seal will begin in Revelation 6:3-4. और दूसरे तुरई के अंदर जो घटनाएं घटेगी वह प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 3 और 4 में है। And when he had opened second seal, I heard the second beast say, "Come and see." जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, और उससे एक बड़ी तलवार दी गई। Red horse here लाल घोड़ा यहाँ पर is a symbolic language for the situation allowed to run. जो है चिन्हात्मक भाषा है जो यहाँ पे बताई गई है। Red horse we saw in Matthew 24:6. लाल घोड़ा हमने मत्ती 24 अध्याय 6वां वचन। And ye shall hear of wars and rumors of wars, and see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। For nations shall raise against nations, राष्ट्र राष्ट्र के लिए उठेंगे, and kingdom against kingdom. राज्य राज्यों के लिए उठेंगे। So we see that as soon as the trumpet too is blown, the nation rises against nation. और हम देख सकते हैं कि जैसे दूसरी तुरई फूकी जाएगी तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध हो जाएगा, And a kingdom against kingdom. और राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध हो And we जाएगा। hear about wars and rumors of wars. और हम सुन सकते हैं लड़ाइयों को और लड़ाइयों के अफवाहों को। But here Jesus is saying that do not be troubled. पर यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि तू घबरा न जाना, For all these things must come to pass. क्योंकि इनका होना अवश्य है, But the end is not yet. परंतु उस समय अंत न होगा। We can see same in Mark 13 chapter 7 to 8 verse. हम मरकुस 13 अध्याय 7 से 8 वचन में यही देख सकते And हैं। even Luke 21:9 to 10. लूका 21:9 से 10। But when you shall hear of wars and commotions, not to be terrified. जब तुम लड़ाइयों को और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, For these things must first come to pass. क्योंकि इनका होना अवश्य है। In 10th verse said, 10वें वचन में कहा गया है, Then he said unto them, Nations shall raise against nations. So under second trumpet we see, दूसरे तुरई के अंदर हम देखते हैं, nation shall raise against nation, राष्ट्र राष्ट्रों के विरुद्ध उठेंगे, kingdom against kingdom, राज्य राज्य के विरुद्ध उठेगा, wars, rumors of wars, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा, nation against nation, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, ethnicity against ethnicity. सभ्यता सभ्यता के विरुद्ध, Peace will be removed from the earth. शांति ले ली जाएगी पृथ्वी से, Fear, anguish, and heart terrified, and all this will be on the earth. डर, घबराहट और दिल में घबराहट और पूरी तरह से गिर जाना, ये सब जो है पृथ्वी पर रहेंगे. All these things must take place. ये सारी बातें होगी, But the end is not yet. पर अंत जो है वो नहीं है अब End तक। means here in Greek it is called telos end. अंत मतलब ग्रीक में उसे तेलास अंत कहते हैं। Telos means the end at the point of rapture. तेलास मतलब रैप्चर के मतलब उठा लिए जाने के अंत। उठा लिए जाने के समय को टेलॉस अंत बोलते हैं. And Jesus is telling this end is not yet. और यीशु मसीह कहता है कि ये अब अंत नहीं है। Telos is not the close of the age तेलास जो है युग का अंत नहीं है, or end of the 7 years tribulation. या 7 साल के
सत्ताओं का अंत नहीं है। Telos is a midpoint of the 7 years tribulation. तेलास जो है वो 7 साल के समय रेखा का मध्य पॉइंट है। End of the age is called Synthelia. युग का अंत उसे कहते हैं सिंथेलिया। In Greek we call it Synthelia. ग्रीक में उसे सिंथेलिया कहते हैं। And in Greek, which Jesus is saying here, is telos end. यहाँ पर जो यीशु मसीह अंत कह रहा है वो टेलास अंत है। End of the present order of things. अब जो चल रहा है उसका अंत, Or events which are going on right now. या घटनाएं जो अब हो रही है। Or from the beginning of this era, all that things started, it will end at the telos end. और जो चली आ रही है घटनाएं शुरुआत से, उसका अंत जो होगा वो टेलास अंत। In other words, this end is the midpoint of 7 years tribulation. दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो अंत है उसको 7 साल के बीच के अंत कहते हैं, और पीरियड एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ रैप्चर। वो समय जो ठीक उठा लिए जाने का समय है, That is called telos end. उसे तेलास अंत कहते हैं। Lord gave all these warnings so that you will know that the telos end is at rapture is not yet until all that events which are spoken be completed. और प्रभु ने ये सब चुनौतियां इसलिए दी, ये सब वार्निंग्स इसलिए दी कि हम लोग जान सके जो टेलॉस एंड है वो अभी नहीं है, वो रैप्चर का जो एंड है तभी होगा जब यीशु मसीह ने बोले हुए सब बातें पूरा होगा। That's why we need to endure till the end. इसीलिए हमें अंत तक टिका रहना Till है। the end means telos end. अंत तक यानी उठा लिए जाने तक। Telos end. तेलास Telos end means till our rapture. तेलास अंत मतलब जब तक हम उठा लिए नहीं If जाते। we'll endure, we will save our अगर हम souls. टिके रहे तो हम अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। Other prophecies needed to be fulfilled. और दूसरी भविष्यवाणियां पूरा होना बहुत That is जरूरी है। authority given to God's 2 witnesses. यानी जो अधिकार है वो परमेश्वर के 2 गवाहों को दिए गए हैं, That we can find in Revelation 11th chapter जो हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पा सकते हैं, from 3rd to 13th verse. 3 से 13 वचन में। We can see Moses and Elijah will come. हम देख सकते हैं कि मूसा और एलिया They आएंगे। both represent law and prophets. वो कानून यानी नियम और नबूवत को दर्शाते हैं। They will prophesy for 1260 days. वो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करते That रहेंगे। means they will prophesy for 3.5 years. इसका मतलब है वो 3.5 साल तक भविष्यवाणियां करते रहेंगे। It doesn't mean that they will start their prophecy from beginning of the 7 years. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी भविष्यवाणियां 7 साल के शुरुआत से करें, But their entry will be 140 days before the midpoint of 7 years. पर उनका जो प्रवेश होना है इस समय रेखा के मध्य पॉइंट के 140 दिन पहले। Yeah, their entry will be 140 days before the middle of the 7 years tribulation period. 7 साल का जो सत्ताओं का समय है उसके मध्य पॉइंट से 140 दिन पहले वो प्रकट होंगे। They will be killed after their 3.5 years ministry. और उनके 3.5 साल की सेवकाई के बाद वो मारे जाएंगे। Their dead bodies will be laid on the street for 3.5 days. और उनके जो मृतक शरीर है वो 3.5 दिन के लिए बाहर रास्ते पर पड़ी रहेगी। They are raised up by God. और वो परमेश्वर के द्वारा पुनरुत्थान पाएंगे। This is the timing of Old Testament saints' resurrection. और ये जो है अंत समय के संतों का पुनरुत्थान का, Old Testament. पुराने नियम के संतों का पुनरुत्थान है। Yeah, at that time all the Old Testament they also get resurrected. That is called mystery resurrection. और उस समय जो पुराने नियम के संत है वो भी पुनरुत्थान पाएंगे और उसे कहते हैं मिस्ट्री रिजरेक्शन। Revelation 10th chapter 7th verse. ये हम प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 7वें वचन। But in the days of the voice of 7th angel, when he shall begin to sound,
the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants the prophets. वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरई फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। The time to reward the saints and prophets. समय जो संत गणों और भविष्यद्वक्ताओं को प्रतिफल देने का है, We can see in Revelation 11:18. जो हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 18 वचन में देख सकते हैं। And the nations were angry. Thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou should give rewards unto thy servants, the prophets, and to the saints, and to them that fear thy name, small and great, and should destroy them which destroy earth. जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। During millennium, all will have reward. मिलेनियम के समय में हर एक को प्रतिफल मिलेगा। And Revelation 21:9 says, और प्रकाशित वाक्य 21:9 कहता है, And there came unto me one of the seven angels, which had the seven vials, full of seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों के से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। So, at this point, there will be no flesh. और इस समय तक कोई शरीर में नहीं रहेगा। All will be spiritual beings. सब जो है आत्मिक लोग हो जाएंगे। It will be at the end of the millennium years. ये जो है मिलेनियम के अंत में होगा। The fulfillment of promise of God we can see in Daniel 12:13. और परमेश्वर के जो अभिवचन का पूरा होना है वो हम दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय 13 वचन में देख सकते हैं। But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest, and stand in thy lot at the end of days. That it is speaking about the rewards of their rewards at the end of their days. अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों में अंत में तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। ये उनके प्रतिफल के बारे में कहता है। And this is the second group which receives glorified bodies. और ये दूसरा ग्रुप है जिनको महिमावंत शरीर मिले। These are the guests at the marriage of the lamb feast. और ये जो है मेमने के विवाह के मेहमान है। Before 7 years or 7 trumpets sounded, 7वीं तुरई फूकने से पहले all the OT people in paradise will have new bodies. सब जो पुराने नियम के संत लोग हैं उन्हें नया शरीर मिलेगा। The Old Testament people are not the part of church. पुराने नियम के लोग जो हैं वो कलीसिया के भाग नहीं है। The Old Testament people who are in paradise are they whom Jesus went into the hell and released them. और पुराने नियम के लोग वो हैं जिनके लिए प्रभु यीशु नरक में गया और वहां से उन्हें उठाया। And our birth in this era is not our own decision. और हमारा जन्म इस युग में हो वो हमारा फैसला नहीं था। Our birth in this era is a God's decision. हमारा जन्म लेना इस युग में ये हमारा निर्णय नहीं, पर ये परमेश्वर का निर्णय है। All in Jesus Christ, New Testament people, which will be called the bride of Christ. और जो नए नियम में लोग हैं प्रभु यीशु के, वो जो है प्रभु की दुल्हन कहलाते हैं। That will be the first group.
वो पहला ग्रुप होगा। Revelation 12:1 says, and there appeared a great wonder in the heaven, a woman clothed with sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. प्रकाशित वाक्य 12:1 फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। Should we open Matthew 13:43? Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears, let him hear. मत्ती 13:43 उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा, जिसके कान हो वह सुन ले। We do not need to figure it out when the second trumpet will start. हमें ये नहीं देखना है कि कब दूसरा तुरई शुरू होगा, But we surely फूंका know जाएगा। that it will start in its time. हमें ये नहीं देखना है कि कब वो फूंका जाएगा दूसरा तुरई, पर वो अपने समय में नियुक्त किए हुए समय में दूसरी तुरई फूंकी जाएगी। For our God is good to bless us with all things that we need. क्योंकि परमेश्वर भला है हमारे साथ, जो हमें हमारी जरूरत है उसको वो पूरा करता We है। need to move in the direction which God kept us. और परमेश्वर हमें उस दिशा में जाना चाहिए जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। God has given us our responsibilities, a call. We should accomplish a call. परमेश्वर ने हमें जवाबदारी जिम्मेदारियां दिया है हमारी बुलावट के लिए, और हमें वो पूरा करना है। And we, the Philadelphia church, will stand. और हम फिलदेल्फिया कलीसिया खड़े होंगे। Second trumpet sounded. दूसरा फूंका तुरई गया। फूंका गया। We read reference हमने बाइबल से पढ़ा and we read that great mountain. About that great mountain. और हमने देखा उस बहुत बड़े पहाड़ के That लिए, great mountain, God is going to throw Satan down. और शैतान को परमेश्वर नीचे फेंकेगा। The great mountain thrown into the sea is the और बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र में फेंका गया, वो है। God gave authority to Satan to rule. और परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दिया है कि वो राज्य करे। Here the sea means the people. यहाँ पे समुद्र का मतलब है लोग। सबसे बड़ा पहाड़ है राज्य करने It- का। वो कहते हैं कि वहाँ पे सामर्थ है। And there is an energy, that energy is satanic energy. और हाँ, वहाँ पे वो शक्ति है, वो है शैतान की They शक्ति। want to make the whole world. और वो पूरे दुनिया को, They got the religious authority. उन्हें धार्मिक अधिकार मिला They है। may come up when the second trumpet is blown वो or sounded. वो आ सकते हैं जब दूसरा तुरई फूंका जाए। Great mountain जाएगा। is a powerful religion. बड़ा जो पहाड़ है वो सामर्थशाली धर्म है। And burning with the fire is thrown into the sea. Means thrown into the world with fire. आग से जलता हुआ Thrown into the sea. वो समुद्र में फेंका So जाएगा। they are with their zeal, they are with their power, they are being thrown into the world. इसका मतलब है कि उनका जो उत्साह है, उनका जो स्फूर्ति है, उसके साथ वो ज्वाला के साथ, यानी मन में जो उनके आग है उसके साथ वो इस दुनिया में फेंके Now जाएंगे। very soon the whole world will be attacked. और अभी पूरी दुनिया जो है वो के द्वारा, Glory. इस्लामिक मजहब के द्वारा पूरी दुनिया पे हमला होगा। Sea means the world. समुद्र का मतलब है लोग। Peace will be taken away from the earth. और शांति जो है दुनिया से छीनी जाएगी। This tribulation is judgment. 7 साल का समय जो है न्याय का समय है। Men will slay. मनुष्य काटा जाएगा। Ethnicity against ethnicity. सभ्यता के विरुद्ध। People are going to be crazy against one another. लोग एक दूसरे के विरुद्ध पागल हो जाएंगे। As soon as the first trumpet is sounded, the second trumpet must be sounded. इसका मतलब है अगर पहला तुरई फूंका जाएगा, उसके तुरंत बाद दूसरा तुरई भी फूंका Right जाएगा। now we don't know when the second trumpet will be sounded. और इस समय हमें मालूम नहीं कि दूसरा तुरई कब फूंका But जाएगा। God will help us to know. पर परमेश्वर हमें मदद करेगा कि हम जान जाएं। Only one thing we need to do is to fight a good fight.
केवल एक चीज हमें मालूम है कि हमें अच्छा युद्ध लड़ना है। We need to fight a good fight that we may stand with God. हमें अच्छा युद्ध लड़ना है और परमेश्वर के साथ खड़ा होना है। If you don't have strong faith, then you may go aside. अगर आपको मजबूत विश्वास नहीं है तो हो सकता है आप हिल जाए। People are saying, I don't want to learn the end time prophecies. और लोग कहते हैं कि मैं अंत समय की भविष्यवाणी को सीखना नहीं चाहता। I don't want to study the book of Revelation. और मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ना नहीं चाहता। If they will not read, how they will come to know? अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो कैसे वो We समझेंगे? need to read the book of Revelation. हमें प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ना बहुत We need to जरूरी है। meditate it. हमें उस पर मनन करना Because जरूरी है, when the 7 years tribulation will hit, क्योंकि जब 7 साल का समय रेखा शुरू होगा then what they will do, those who are not ready. तो वो क्या करेंगे जो तैयार ही नहीं है। About us, God said, हमारे लिए परमेश्वर ने कहा, do not harm the oil and grace. तेल और अनुग्रह को नुकसान न पहुंचाना। That means God is taking care of us. इसका मतलब है परमेश्वर हमें संभाल We रहा are है, His people. हम उसके लोग हैं। God will give a celebration and joy to us. परमेश्वर हमें आनंद और उत्साह देगा For we will be caught up in heaven. और हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। Lot of people will die in the beginning of the 7 years tribulation. 7 साल के समय रेखा के शुरुआत में ही बहुत सारे लोग मर जाएंगे। And even also when the fourth trumpet will run, many will die. और चौथी तुरई जब फूकी जाएगी तब बहुत सारे लोग मर जाएंगे। All of the sudden sword will come and cut off. और अचानक तलवार आएगी और काट डालेगी। And you will come to know that many hundreds of pastors will die. और आप जान जाएंगे कि बहुत सारे पास्टर जो रहे वो मर जाएंगे। For God is striking everyone who is falsely prophesying. और परमेश्वर उन सबों को काट डालेगा जो गलत भविष्यवाणियां करते हैं। Many those people who are famous, they stood before a large congregation. God is going to strike them. और बहुत सारे पास्टर्स जो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के सामने खड़े हुए उनको परमेश्वर काट They डालेगा। are appointed by Satan. वो शैतान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। I am not saying all, but many are there. मैं ऐसा नहीं कहता सभी, लेकिन बहुत सारे हैं। All the fake pastors making money for their livelihood. बहुत सारे फेक पास्टर्स जो अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं And they are leading people blind. और लोगों को अंधकार में चला रहे हैं। They are like a wolves in the sheep clothing. वो लोमड़ियां हैं मेमने के भेड़ के कपड़ों में। They are not worthy of me, Jesus said. यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे योग्य नहीं है। God has not given you place to open this all. परमेश्वर ने आपको जगह इसलिए नहीं दी कि ये सारी बातें God has given you a करो। place that you may worship God and bring and lead people in faith. परमेश्वर ने आपको जगह दी कि आप परमेश्वर की आराधना करें और बहुतों को विश्वास में लेकर आए। God will struck the false leaders. परमेश्वर गलत अगुवाओं को काट डालेगा। I am convinced that shepherd knows them. और चरवाहा जो है उन्हें मैं जानता अच्छी है। तरह से समझ गया हूँ कि चरवा जो है उनको जानता जानता है. है। They will hear his voice. वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनेंगे। If you are his sheep, you will hear God's voice. अगर आप उसके अगर भेड़ हैं तो आप उसकी आवाज को सुनेंगे। God will give one final chance to all these people. और परमेश्वर आखिरी एक चांस उनको देगा। इन सारे लोगों को परमेश्वर आखिरी एक चांस भी मौका भी देगा, that they may repent and come to the Lord. कि वो पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास आए। If they will not repent and come to the Lord, अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे और परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, God will give them to Katehon system. परमेश्वर उन्हें कतेहोन के लोगों को दे देगा। That the Katehon system may kill them. कि कतेहोन जो के लोग जो है उन्हें मार डाले। How these people can't get revelation? और इन लोगों को कैसे प्रकटीकरण नहीं मिल रहा For they है? don't have truth. इसलिए क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं They है never sought for truth. और वो कभी भी सच्चाई के पीछे नहीं चले।
They say they are in the truth, but they are not in the truth. वो कहते हैं कि वो सच्चाई में चलते हैं पर वो सच्चाई में नहीं चलते। If they are in the truth, they will get the end time revelation. अगर वो सच्चाई में चलते हैं तो जरूर वो अंत समय के सच्चाई को जानेंगे Their hearts will be right with God. और उनके हृदय परमेश्वर के साथ सही Their चलेंगे minds will seek what God intended for them. और उनका मन जो है सही रीति से अगुवाई पाएगा जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा है। We can see in Matthew 24:4-5. हम मत्ती उसका 24 अध्याय 4 से 5 देख सकते White हैं। horse, श्वेत घोड़ा they will lead many astray. बहुतों को विनाश में लेकर जाएगा Right before a great mount fell in the sea, और बहुत बड़ा पहाड़ वो समुद्र में गिराया that जाएगा। means there will be a great deception. इसका मतलब है बहुत बड़ी फसावट होगा। Many wonder performing people will come. बहुत सारे चिन्ह चमत्कारी लोग We आएंगे। can Matthew 26, 6th verse, you will see that red horse running. देख सकते हैं कि लाल जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है The mountain falling in sea, और बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र में गिराया जाएगा the false Christ will appear, और झूठे क्रिस्त प्रकट होंगे, false gods will appear, झूठे ईश्वर प्रकट they will होंगे। demonstrate great powers, वो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार performing बताएंगे, signs and wonders. वो चिन्ह चमत्कार करेंगे There will be doing a great miraculous works. और बहुत सारे चमत्कार के काम करेंगे। We don't need to be worried. हमें चिंता करने की जरूरत We need नहीं, to trust God. हमें प्रभु पर भरोसा करना है। Jesus said, "You have a little power." यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास थोड़ा सा We सामर्थ may be in है। a small group. हो सकता है हम थोड़े से We लोग may be हो, few people, थोड़े लोग हो, but we should wait on God पर हम परमेश्वर पे भरोसा करें that we may give glory to Him and Him alone. और हम परमेश्वर को और परमेश्वर को महिमा We दें। know that ethnicity against ethnicity will work. और हम जानते हैं कि सभ्यता के विरुद्ध सभ्यता चलेगी। When we will go through 2 Thessalonica 2nd chapter, जब हम दूसरा तस्सलोनिकी दूसरा अध्याय we देखेंगे will find all these things. हम इन सारी बातों को देख सकते We should हैं। not be alarmed. हम अचंभे नहीं होना चाहिए. We should not be quickly shaken in our minds. हमारे मनों में हम हिल नहीं जाना चाहिए। Something may happen. कुछ तो होगा Something may happen so severe, और कुछ इतना गंभीर होगा, it will happen to shake you. वो होगा आपको हिलाने के But लिए, you should not be shaken. पर आप जो है हिलाए नहीं You जाए should not be alarmed. और आप जो है अचंभित न For हो in जाए। Matthew 24, Jesus said, "This must take place." क्योंकि मत्ती 24 में यीशु मसीह ने कहा कि ये होना अवश्य है, Yet the end is not yet. पर फिर भी ये अंत नहीं है। End is not yet means the rapture end is not yet. ये अंत नहीं है, इसका मतलब है उठा लिया जाना ये अंत नहीं है। That means the rapture end means the telos end is not come yet. और रैप्चर एंड यानी उठा लिया जो लिया जाना है, तेलास अंत अब तक नहीं आया Telos है। end means the middle of the 7 years tribulation. तेलास अंत मतलब 7 साल का मध्य पॉइंट। You will hear wars and rumors of wars. आप लड़ाइयों को और लड़ाइयों के चर्चाओं को सुनेंगे। Revelation 8:8. प्रकाशित वाक्य 8:8। All this will cause people having wars between each others. और ये सब के वजह से लोग एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करेंगे। Government will bring forth a strong martial evil law to control people. और लोगों को ताबे में लाने के लिए मार्शल लॉ गवर्नमेंट लेकर आएगी। Kateon army will come. और सैनिक आएंगे, कतेहोन सेना के They लोग will come on आएंगे the street and kill people mercilessly. और वो गली गली में आएंगे और लोगों को काट डालेंगे। Killing always will take place. मारा जाना, काटा जाना हमेशा होगा। Third of the living creature will be destroyed. और दुनिया में 1/3 लोग मारे जाएंगे। Living creature जो जीवित प्राणी है
will be destroyed. वो नाश किए जाएंगे। We read it in Revelation 8:9. हम प्रकाशित वाक्य 8-9 में पढ़े हैं। Living creature will be destroyed means that property will be destroyed. 1/3 प्राणी मर जाएंगे, यानी जो संपत्ति है वो नाश की जाएगी। It will be a sign of economy that they will destroy the third of economy. और जो संपत्ति है उसका 1/3 संपत्ति नाश किया We जाएगा। need to pay attention to the word of the prophecy of God. हमें परमेश्वर के भविष्यवाणियों पे बहुत ही ध्यान देना है। 1/3 they will die. 1/3 मारे जाएंगे। Trees, grass, living creature, घास, पेड़ और जीवित प्राणी, literal death, hates coming up. और बहुत बड़ी महामारी आएगी। They will have to redirect the whole system in such a way that their people will get food and the rest may not get food. और ऐसा हो जाएगा कि उनके लोगों को खाना मिलेगा और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। And they will redirect the whole system in that way और वो पूरे सिस्टम को इस तरह से बना that लेंगे their people will get food and a rest may not get. कि उनके लोगों को खाना मिले और बाकी लोगों को नहीं। This will happen somewhere between first and the second trumpet. और ये जो होगा वो पहली तुरई और दूसरी तुरई के बीच में होगा। That will make alarm or quickly shaken. और इससे बहुत बड़ा अचंबा होगा लोगों को और लोग हिल As जाएंगे। you are waiting for the Messiah जैसे आप मसीहा के लिए रुके हैं and you guard it and you know that he will come, और आपको मालूम पड़ गया कि वो जरूर आएगा, you do not be deceived और आप जो है वो फंसाए न जाए by the great mountain which is going to come, बहुत बड़ा पहाड़ जो आने वाला as it है, is in Revelation 8:8. जो प्रकाशित वाक्य 8:8 में That है, will come with a deception or some word or some spirit. वो फसावट से आ सकता है, आत्मा से आ शब्दों सकता से। है, शब्दों से आ सकता है, With signs and wonders. चिन्ह चमत्कारों They के may try साथ to confuse people. वो लोगों को उलझन में डाल They देंगे may show some false hope और वो झूठी उम्मीद दर्शाएंगे, as if they themselves are Messiah. वो ऐसे जताएंगे जैसे वो खुद मसीहा है। By 2030, no more man will use smartphones or any technology. और 20-30 बाद कोई भी मनुष्य टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मोबाइल्स यूज नहीं For the करेंगे, technology is inside the people. क्योंकि तकनीकी जो है वो लोगों के अंदर Truly, है। we can know that AI is scary. और सच में हम जान ले कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही डरावना है। Blue beam, hologram, something they will do a big in the sky. और आकाश में वो अलग अलग बातों को दिखाएंगे। Richest people have done some crazy demonic stuff. और जो अमीर लोग हैं उन्होंने बहुत ही ऐसी बातों को किया है जो Drinking गलत children's है। blood, giving sacrifices to the devil. और बच्चों के लहू को उनके शैतान के सामने अर्पण चढ़ाया है और ऐसी बहुत सारी गलत बातों को किया है। We are reading Bible, we are reading Revelation that we may get understanding. हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं कि हम समझ पाए। If seals are sealed, we can't get understanding. अगर मुहरों पर मुहर लगाई जाए तो हम समझ नहीं सकते Since रहस्यों seals को। are open for us that we may get understanding and know the knowledge from Him. इसलिए क्योंकि मुहरें खोली गई है, इसीलिए हम उसके रहस्यों को समझ पा रहे हैं। Now we need to come to His presence. अब हमें जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। As we enter into the holy place, जैसे हम पवित्र स्थान में प्रवेश which is करते prepared हैं, for us, जो हमारे लिए तैयार that we है may be with our Lord. कि हम प्रभु के साथ रहे। As it is written in John 14:1-2. जैसे यूहन्ना 14:1 और 2 में लिखा है, We need to prepare ourselves. हमें अपने आप को तैयार We need करना to है, understand. हमें समझना We है, need to give ourselves for the meditation of the Word of God. हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देना है, उसके मनन के लिए अपने आप को दे देना Seals है। are informations which are going to run. मोहरें इंफॉर्मेशन है उन घटनाओं के लिए, रहस्यों के लिए जो होने वाली है। And the trumpet will be sounded.
और तुरई फूकी जाएगी। Everything is shadow. हर एक चीज छवि जैसा And है there comes a reality. और वो हकीकत में बदल God is जाएगा। going to bless us. परमेश्वर पर हमें आशीष As करेगा। Noah entered into the ark, जैसे नूह जहाज में गया, totally 8 people, वो टोटल 8 लोग थे। so we are going to enter. तो जरूर हम भी उसमें प्रवेश करेंगे। As God shut the door of that ark, जैसे परमेश्वर ने नूह के जहाज के दरवाजे को बंद किया, God will shut that door, और परमेश्वर हमारे लिए वो दरवाजा बंद and the करेगा। 5 unwise will be outside, left behind, और 5 मूर्ख कुंवारियां बाहर रह and will be जाएंगी crying. और रोती रहेंगी। Mid heaven, the door will be opened for us, Philadelphia Church. मध्य आकाश हमारे लिए खोला जाएगा। हे फिलडेल्फिया कलीसिया, Your body is holy. आपका शरीर पवित्र है। You need to keep it holy for the Lord. आपको प्रभु के लिए वो पवित्र रखना है। Should we close our eyes? क्यों ना हमारे आंखों को बंद करें। Father God, we thank you. हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते हैं। We thank you for teaching us हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सिखा रहा है and helping us, और मदद कर रहा है that we may know you more, कि हम तुझे और जान सकें, that we may understand the book of Revelation, कि हम प्रकाशित वाक्य समझ सके and we may declare it to others, और दूसरों को हम बता सके, that we may lead many to your knowledge, Lord. कि हम बहुतों को तेरे ज्ञान में चला We may सके, lead many to salvation. बहुतों को उद्धार में लेकर आए, We may lead many to repentance. बहुतों को पश्चाताप में लेकर आए। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं As you पिताजी, said, I will build my church. जैसे तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Thank you for building your church. धन्यवाद करते हैं कि तू तेरा कलीसिया को बना रहा है। Father, work in us more. हे पिता, हम में और काम कर, Move in us more. हम में और काम कर, Bless us with your blessed presence. और तेरे आशीषित उपस्थिति को के लिए धन्यवाद करते हैं, That we may stand strong in thee. और हमें उस उपस्थिति से आश्रित करके हम तुझ में मजबूत खड़े रहे, That we may stand strong still and अंत तक हम मजबूती के साथ खड़े that रह we may सके, stand strong till telos end. कि हम तेलास अंत तक हम खड़े रह We may सके, stand strong till our rapture. हमारे उठा लिए जाने के लिए खड़ा हो सके। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते We हैं, worship you. तेरी स्तुति करते हैं। Whatever may take place, कुछ भी क्यों न हो जाए, wars, rumors of wars, लड़ाइयों के चर्चे, a mount may fall into the sea, और बड़ा पहाड़ समुद्र में क्यों न गिर जाए, people may be killed or kill one another, लोग मारे जाए या एक दूसरे को मारे, a religious slaughter may take place, धार्मिक काटा जाना क्यों न हो but जाए, we will stand in thee, Lord. पर तुझ में हम खड़े रहेंगे As पिताजी, the end is approaching near, क्योंकि अंत नजदीक आ रहा है। we will stand with your strength. हम तेरे सामर्थ्य से खड़े होंगे। We ask you, Lord, हम तुझसे मांगते हैं, strengthen and heal everyone in the house. तेरे घर में हर एक को सामर्थ्य दे और चंगाई दे। None of your child be weak. तेरा कोई भी बच्चा कमजोर न पड़े, None of your child be sick. तेरा कोई भी बच्चा बीमार न पड़े। Let everyone, Father, हर एक पिताजी mentally prepared, दिमागी तौर से तैयार हो जाए, spiritually prepared. आत्मिक रीति से तैयार हो Father जाए। in heaven, हे पिता जो तू स्वर्ग में today है, we plead the blood of Jesus on each and everyone here. आज यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं, And we pray for the pressure of the Holy Ghost may come. और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का दबाव आए, And we all may be led into your truth, Lord. और हम सब तेरे सत्य में अगुवाई पाए, And we may get understanding of the revelation. और प्रकटीकरण का समझ हमें मिल We पाए। worship you, Father. हम तेरी आराधना करते We bless पिताजी, you, Lord. हम तुझे धन्य कहते हैं, All we desire is you. और सब कुछ हमारी जो चाहत है वो तू है, Our desire is you, Lord. हमारी
request. इच्छा तू है। We thank you. हम धन्यवाद In our करते हैं। journey, you are with us. हमारे सफर में तू हमारे We साथ lack है। no good. हमें कोई भी अच्छी भली बात All की we घटी desire नहीं। is you. और हम सब कुछ जो चाहते हैं वो तू है। We thank you हम धन्यवाद for करते calling हैं। us, bringing us into Philadelphia Church. हमें बुलाने के लिए, चलाने के लिए फिलदेल्फिया कलीसिया को। Thank you for making us whole, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें परिपूर्ण बनाया। That all glory, all honor, all praise to you forever सारी and ever. महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा तुझी को केवल। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन। Amen.